ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے اور اس سے ہمیں بھی خطرہ ہے، پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، جبکہ ہم جب ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا جتنا باہر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ ہم کیوں ہمارے اوپر کیوں چسپاں کر دی گئی ہے یہ چیز کہ پاکستان بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل پر فوکس کرنا چاہیے، اور جب مجھ سے جیسے ابھی دلی سے کافی فون آئے چینلز کے آپ کی طرح کے تبصرہ کیا ہے، یہاں کیا فیلنگ ہے 2 دن سے، میں نے کہا یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہم کافی خوش ہیں کہ ہمارے لیے ایک الگ وزٹ ہوگا، ایئر فورس 1 جہاں جانا چاہے جائے، لیکن یہ بات کمپٹیشن کی بات اب ہم چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ آپ نے اسٹریٹجک سیکیورٹی کی بات کرنی ہے، ادھر اقتصادیت کی بات کرنی ہے، میں تو سمجھتی ہوں ہمارے ساتھ بھی اقتصادیت کی بات کی جائے تو ہماری بہتری ہے، لیکن جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو پاکستان میں ہیڈ لائنز تو ہمارے اپنے اب ڈومیسٹک مسائل ہونے لگے ہیں، جو ایک مثبت ٹرینڈ ہے کہ ہمارے جو ایک حد تک جسے کہتے ہیں نا obsession ہوتا تھا وہ نہیں ہے، اور بہت اسٹریٹجک شفٹ یہ آیا ہے جو انڈیا کی انٹلیکچوئل کلاس میں تو ہمیشہ سے موجود ہے، یہ شفٹ نہیں ہے۔ کلدیپ بھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے امن کی ایک خواہش رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہاں بھی انٹلیکچوئل کلاس میں یہی ایک جذبہ تھا۔ میں اس سے آگے کی بات کر رہی ہوں، یہاں امن کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے، ٹریڈ کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے پاکستان میں مین سٹریم سیاسی تنظیموں میں پھیلی ہے، وہاں بائی ان آیا ہے، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کے اسٹیبلشمنٹ میں ایک فنڈامنٹل اور بنیادی فرق آیا۔ میں ایک ٹریک 2 پروسیس ہم بھی چلا رہے ہیں جناح انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت بڑی پرابلم جو یہ آتی ہے، ہرڈل یہ آتی ہے کہ ہم یہاں بلا سکتے ہیں انسٹیٹیوشنلی اپنے مہمانوں کو اور ان کو گارنٹی کر سکتے ہیں نہ صرف ان کی سیکیورٹی لیکن ویزے اور ظاہر ایک ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے، وہاں وہ بلانا چاہ رہے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنلی اکثر یہ ہوتا ہے، ہر آرگنائزیشن ہی، لیکن اکثر ہمیں یہ دقت پڑ رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنلی اب وہ ہو نہیں پاتا، یعنی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پرمیشن نہیں دے رہی۔ 8 لوگ اگر جا رہے ہیں اس میں سے 2 کے ویزے نہیں ہوں گے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک پرابلم ہوتا ہے اور پورا پروگرام ہی آف ہو جاتا ہے، تو کسی تیسرے ملک میں بیٹھ کے سول سوسائٹی کو مذاکرات کرنا، ریٹائرڈ ڈپلومیٹس کو مذاکرات کرنا، جنرلز کو مذاکرات کرنا، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں شاید صاحب۔ ایک اور امپورٹنٹ چینج ہے، مثلا دیکھیں نا اب ہندوستان میں کلدیپ صاحب کے علاوہ اروندھتی رائے، انہوں نے ایک بات کی کشمیر کی، اس میٹنگ میں ناگا کے لوگ بھی تھے، سکھوں کے لوگ بھی تھے، ماویسٹ بھی تھے، دوسرے لوگ تھے، انہوں نے ایک بات کی جو شاید روایتی ہندوستان کے موقف سے برعکس تھی۔ ان کے خلاف اتنی ڈیمونسٹریشنز ہوئی، میڈیا بھی شامل ہو گیا اور ہندو انتہا پسند جو ہیں لابی ان کے خلاف اٹیک کرنے لگی، تو ایک وہ ماحول بھی ہے ایک عدم جو ٹالرنس کا، which I think is very important، کہ ایک حقائق جو زمینی حقائق چل رہے ہیں ان کے مقبوضہ کشمیر میں، اس کو بھی اگر سچ بات کی جائے تو اس کو آپ کو سزا دی جائے۔ کلدیپ صاحب ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر پاکستان میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم شدت پسند کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان کی رٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور عالمی امن کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تو اسی قسم کے لوگ تو آپ کے اپنے ملک میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں اپنے بندوں کو ٹھیک کرنے دیں، آپ اپنے لوگوں کو ٹھیک کریں۔ دیکھو یہاں پہ جو ان کے خلاف ہیں وہ RSS کی لابی ہوگی، ویسے نہیں، ویسے تو لوگوں نے کہا کہ رائٹ ٹو اسپیک تو ہر ایک کا ہے، چاہے جو مرضی بولے، تو اس لیے وہ جو جنہوں نے کیا وہ زیادہ ہندوتوا کراؤڈ تھا، ویسا کراؤڈ نہیں تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انڈیا کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، جس سے دونوں ملک پیسفلی اور ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے رہ کر اچھی زندگی گزار سکیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹس کے پاس کوئی اب آئیڈیا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نان آفیشیل جن کی کچھ کریڈیبلٹی ادھر ہے ادھر ہے، وہ بیٹھیں آپس میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں کامن ہے، کیا کنسنسس ہماری ہے، پھر وہ بیچیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کشمیر کے بغیر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے، کشمیر کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ کیسے حل ہوگا؟ اب یہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ کہنا مشکل ہے، لیکن میرے پاس ایک ہے، مشاہد کو بتایا تھا، مشاہد کہتا ہاں بہت پرومسنگ ہے، تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جب منموہن سنگھ صاحب یہ بات کریں گے اوباما صاحب کی موجودگی میں کہ اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے، ہم خود سالو کریں گے، امریکن کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا، کیسے حل ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ شاید آپ نے بائے لیٹرلزم کا فیلئر ہو گیا کلدیپ صاحب، لیکن سارسی اب دیکھیے کتنے سال ہو گئے ہیں،
बायलैटरलिज्म बेहतर है, ठीक है, बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर हो, बाहमी रिश्तों पे हम टॉक्स करें, लेकिन जब बायलैटरलिज्म फेल होता है, आप कहीं नहीं आगे बढ़ पा रहे। कश्मीर में अब तो मैं समझती हूँ इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जैसे दहशतगर्दी हमारे लिए एक नासूर है, कश्मीर में जो हो रहा है इट्स एन इंटरनेशनल इमेज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ऑब्वियसली यू वांट टू सॉल्व इट, लेकिन सालसी ना हम चाहते हैं ना आप, लेकिन एक हद होती है कि अगर प्रॉब्लम मसला हल नहीं हो रहा है तो शायद एक तीसरा मीडिएटर आ जाए, चाहे वो अमेरिका ना हो, बेशक आप किसी और को अपॉइंट कर लें, किसी इंग्लैंड को, बरतानिया को कर लें, चाइना को कर लें। ऑस्लो में टॉक्स हुई हैं, बहुत सी ममालिक में इस तरह डायलॉग तो हो ही नहीं रहा है इसी वक्त। तो डायलॉग तो ना फ्रंट लाइन पे हो रहा है ना बैक चैनल पे हो रहा है, एक ट्रैक 2 चल रहा है, उसमें भी माजरत के साथ मैं ये कहूंगी कि जो ट्रैक 2 में हम बात करते हैं उसको एटलीस्ट हम लोग पाकिस्तान में फरोग देते हैं, मीडिया में बातें आती हैं, हम अपने फॉर्मल सेक्टर को नोटिफाई करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं, मिलिट्री को भी फुली ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि ये सब प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिसी में। वहां हमारे जो दोस्त होते हैं कहते हैं भाई हम तो इतना नहीं कर सकते, सो वी हैव क्लियर रिस्ट्रिक्शंस। कुलदीप साहब आप एक तो एक्सेप्शन है ना, मैं तो सिक्योरिटी सेक्टर की बात कर रही हूँ। सुना है ये सुनो कि सुना है कि जब ये परवेज मुशर्रफ था उसके वक्त एक सोल्यूशन होने को था। उससे पहले जब नवाज शरीफ था तो मुझे याद है मैंने वाजपेयी से, प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने पूछा, वो कहते हैं अरे नवाज शरीफ के जाने से वी वर हैड ऑलमोस्ट रीच देयर, ऐसे अल्फाज थे। इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूला है जिसपे के इनका काफी 80% फायदा, अगर मुतफिक हैं उस पर तो वही कर लें, देखें तो सही क्या फार्मूला। नहीं कुलदीप साहब 4 पॉइंट फार्मूला, 4 नुकाती अच्छा, कुलदीप साहब से मैं कुलदीप साहब को एक मैं ये बात बताऊं, कुलदीप साहब नहीं थी, उसका ये था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुशाहिद साहब उस वक्त भी उनके साथ थे, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनके साथ थे, दोनों फार्मूले इनके सामने थे। क्या दोनों फार्मूले एक थे शाह जी? गुफ्तगू शुरू हुई थी, मैं समझता हूं कि दोनों ने कोशिश की। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और मियां साहब ने भी बेनजीर भुट्टो साहब की पॉलिसी को आगे लगाया कि डायलॉग के जरिए मसला हल होना चाहिए, और जब से हम न्यूक्लियर पावर बने और कोई रास्ता नहीं। को हल एक है, हल की गुफ्तगू चल रही थी, उसकी ठोस बात भी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ कि जब हल पेश किया गया हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान में कुलदीप साहब आपकी जो हुकूमत है, मुझे याद है मैं जब मिला उसको जाके, आपके दोस्त आई के गुजराल को, पहले बड़ा वो खुश था, बाद में वो भाग गया कि जी अब तो बीजेपी मुझे जान नहीं छोड़ेगी। फिर ये मनमोहन सिंह साहब से बात हुई, वो डर गए कि जी ये हो जाएगा, और बीजेपी वाले हमें कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो फिर मसला हल होगा। मेरी इंफॉर्मेशन है कि मनमोहन सिंह साइन करने को जा रहे थे, वो वकीलों की वो हड़ताल शुरू हो गई, एजिटेशन शुरू हो गई। पहले 2 साल उन्होंने घास नहीं डाला जी। कहां पे पहले 2 साल जब 2005 में और 6 में फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद थे ना, खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे खुद कहा कि मनमोहन सिंह आने वाले थे वो दस्तखत करने के लिए, लेकिन वो आपस यहाँ वकीलों की और जजों का हो गया। 2007 की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे जुडिशरी की मूवमेंट शुरू हो गई, यानी अगर वकला ना होते तो ये हो जाता कश्मीर। नहीं, आई एम सॉरी, आई डिसएग्री, इसलिए नहीं होता, और ये बात हम मुस्तकिल करते रहते हैं क्योंकि वो 4 नुकाती फॉर्मूला मतलब जनरल मुशर्रफ के दफ्तर और उनके मुशीर तारिक अजीज और अरब खुर्शीद कसूरी साहब कहते हैं, मोहतरम है हमारे, कि मैं भी उस लूप में था, बहुत कम लोग उस लूप में थे। पाकिस्तान के पार्लियामान को नहीं एतमाद में लिया गया था, ना मैंने सुना क्या काबीना को भी नहीं एतमाद में लिया गया था, तो वो इस तरह तो नहीं साइन होता इतना बड़ा। आई मीन जो भी आप लेकिन इंडिया में भी डिबेट नहीं हुई थी, इंडिया में थोड़ी बहुत हुई थी, इंडिया में थोड़ी बहुत हुई थी वो। अच्छा यार ये बताइए अब को फार्मूला है हमारे पास? नहीं, देखिए फॉर्मूलाज बहुत हैं, फॉर्मूला की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, सियाचिन की बात करें, क्योंकि कहा जाता है यहाँ के भाई आपका एस्टैब्लिशमेंट इम्पीड करता है, आपकी मिलिट्री ने बहुत, तो भाई वहां सियाचिन पर भी मोहतरमा शहीद ने और राजीव गांधी ने साइन और डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट उसे कहते हैं, बेसिकली फोर्सेस पीछे हटें। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट और मैं समझती हूँ बिल्कुल वेस्टफुल बैटलफील्ड है, उस पर तो उन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं, इससे एतमाद साजी होगी वगैरह। अब वो बात भी CBM जिसे कहा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जिम्रे में भी नहीं आती।
हमारे जो इंडियन दोस्त है वो कहते हैं कि अब वो भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से वो एग्रीमेंट हुआ था जब राजीव गांधी साहब मोहतरमा का, लेकिन जब जुलाई 1989 में राजीव इधर आया उसने कहा कि मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती। कुलदीप साहब बेसिक टेबल पे रखेंगे, अब तो वो कहते हैं कि हम टेबल पे, इंडिया वापस जाके वो उससे हट गए थे, पीछे हट गए थे, मुकर गए थे। इशू यही है कि आपकी जो मैं कहता हूं जो क्रस्टी ओल्ड मैन ऑफ द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को, उनकी सोच माजी की है। हाँ, इंडियन मिलिट्री रिफ्यूज, नॉट द क्रस्टी ओल्ड मैन। वही है ना, इंडियन मिलिट्री सोच पुरानी सोच होगी ना जी, वो नहीं मानते। अच्छा शहरी, आपकी हुकूमत किसी एक फार्मूले पे इस वक्त गौर कर रही है? देखिए, मैंने फिर आपसे अर्ज किया, इसमें फॉर्मूले का मसला नहीं है, फॉर्मूले बहुत दिल बड़ा करें हिंदुस्तान वाले, फिर बात आगे। ये सारा इसके 15 हम आपको 15 क्या 2-3 मुस्बत तरीकेकार बता सकते हैं जो लोग इस पर काम करते हैं। आप वर्किंग कर रही हैं किसी बहुत सारे, देखिए फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है। 52 हल है फॉरेन ऑफिस के पास, दोनों फॉरेन ऑफिस, खारजा पूरे अमूर को पता है क्या करना होता है, किधर आगे जाना है, किधर पीछे। आपको पॉलिटिकल विल की जरूरत है और वो आपके पास है। जी, मैं समझती हूँ कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट, और अब तो आपने देखा है मिलिट्री गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में भी तायद करती हैं इस बात की कि हमें भारत से अमन। इस वक्त दोनों तरफ विल नहीं है मुझे लगता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ। कुलदीप साहब, आप अपना दिल बड़ा क्यों नहीं करते? आखिरी सवाल है आपसे, मुशाहिद साहब ने कहा था अपना दिल बड़ा करें ताकि मसला हल हो जाए। ये हर दफा कहता है, मैंने कहा मेरा तो दिल बहुत बड़ा है। कुलदीप साहब का तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट का और रूलिंग क्लास का दिल बहुत छोटा है। बड़ा मुल्क जरूर है लेकिन दिल छोटा है। यहाँ पाकिस्तान में आई डिसएग्री अ लिटिल बिट माजरत के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल और श्रीलंका हो, पाकिस्तान में पूरी विल है। आप मुझे बताएं कि इंडिया ने फिर, अगर विल की बात है, इंडियन मिलिट्री ने सारी इतनी अपनी फोर्सेस क्यों पाकिस्तान की तरफ फोकस जी कुलदीप साहब? नहीं, ये तो नहीं लगता। देखिए ना, मैं आपको डिविजन्स के नाम बता देती हूँ। नहीं देखिए, क्योंकि हम तकवीत चाहते हैं, हम मूवमेंट चाहते हैं, तो हम मिलिट्री से पूछते हैं आप पीछे हटेंगे तो कहते हैं वो देखिए कहाँ खड़े हैं। बात सुनिए, सो दिस हैज टू हैपन फ्रॉम द मिलिट्री ऑल्सो। अच्छा, जो एक कॉन्फिडेंस ही था है जिसकी वजह से आपने फौजें वहां से हटा के अफगानिस्तान की है, ये तो जाहिर है ना, हर एक को पता है। लेकिन कॉन्फिडेंस, इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों हुकूमतों में कॉन्फिडेंस बना है, नहीं तो कभी पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से नहीं हटाता। तो इसलिए छोटी सी बात भी हो तो वो, लेकिन आपकी फौज पीछे नहीं हटी है जी, आपकी फौज हटी है, 1 इंच नहीं हटी है। आपकी फौज ने तो कोल्ड स्टार्ट शुरू कर दिया है कि हम दोनों तरफ हमला करेंगे, 2 जंगें लड़ेंगे और कब्जा भी करेंगे। जा रहे हैं ना। ये बताइएगा कि राजस्थान के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे और उसके बाद कश्मीर के बॉर्डर पे आपकी फौजें नहीं है? नहीं, हमारी नहीं हटी है। आपने अपनी फौजें कुछ हटा के अफगानिस्तान के लिए लगाई हैं, हमने हटाई है ना बात। इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों हुकूमतों में कॉन्फिडेंस बना है, नहीं तो कभी पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से नहीं हटाता। तो इसलिए छोटी सी बात भी हो तो वो, लेकिन आपकी फौज पीछे नहीं हटी है जी, आपकी फौज हटी है, 1 इंच नहीं हटी है। आपकी फौज ने तो कोल्ड स्टार्ट शुरू कर दिया है कि हम दोनों तरफ हमला करेंगे, 2 जंगें लड़ेंगे और कब्जा भी करेंगे। जा रहे हैं ना। ये बताइएगा कि राजस्थान के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे और उसके बाद कश्मीर के बॉर्डर पे आपकी फौजें नहीं है? नहीं, हमारी नहीं हटी है। आपने अपनी फौजें कुछ हटा के अफगानिस्तान के लिए लगाई हैं, हमने हटाई है ना भाई। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल तो बड़ा हो गया, आपका दिल अभी तक छोटा है। नहीं, इसका मतलब देखिए इसका कि कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को हो रहा है कि अपनी फौजें वहां से हटा के, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा ना कुलदीप साहब, आपकी फौजों को, आपकी हुकूमत को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, वो भी हटा लें पीछे, क्या फर्क पड़ता है जी उससे? देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूं कि भाई फैक्ट के पाकिस्तान ने हटाई, इज इट सम प्लस पॉइंट के इसका मतलब है तो हमारी तरफ से हुआ ना प्लस पॉइंट जी कुलदीप साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से प्लस पॉइंट हुआ ना, आप भी थोड़े से दिल खुला करें अपनी फौजों को पीछे। वहां भी फौजें आगे से जो पहले थी उससे कम हुई हैं, ये कहा गया, लेकिन शहरी का कहना नहीं हुई, नॉट एट ऑल, नहीं हुई। एक कंटोनमेंट, एक गैरिसन, एक चीज मैं आपको गिनवा सकती हूँ कत्तन, बल्कि कश्मीर के हवाले से तो और अब एक कॉन्सेंट्रेशन हो रही है वहां। और यहाँ पे ऐलान बयान आया था कि कश्मीर में आगे से फौजें कम कर दी गई हैं, ये ऐलान था गवर्नमेंट से। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो चीजों नहीं, आप वो पता करें। कुलदीप साहब, प्रोग्राम वक्त हो गया, मैं ममनून हूँ कुलदीप नायर साहब का, शहरी रहमान साहिबा का और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को। फर्स्ट, अफगानिस्तान की एक कहावत है, बुज़दिल मरीज को दुनिया का कोई डॉक्टर सेहत याब नहीं कर सकता। हम लोग किसी न किसी हद तक तस्लीम करें या न करें, बुज़दिली का शिकार हैं। हम अंदरूनी
اور بیرونی ہر قسم کے خوف میں مبتلا ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم اس خوف سے نہیں نکلیں گے ہم اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی اس وقت تک بہتری نہیں آ سکے گی جب تک دونوں ملک خوف سے آزاد نہیں ہوتے اور دونوں اپنا اپنا دل بھی کھلا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کے دکھ سے محفوظ